The city of Delhi, marked by cathartic events, 1947 and the partition of India, the state of national emergency from 1975 to 77, and the violence of 1984. Cities are made of spaces and memories, spaces that can produce both amnesia and remembrance. Perhaps between the struggle to survive and the pressure to forget, there exists a memory of the past. In this personal diary of Delhi, I do not bring the past as it was, but the past revisited today. We were in Shantiniketan for a holiday in the summer of 1975 when emergency was declared over the radio. My mother looked grim. The week after, we returned to our Sarvodaya Enclave house in Delhi and I forgot about the announcement. For a 12-year-old, the 19 months that followed remain a blur of memories. Struggling with maths, the release of the film Sholay, and the anxieties of growing up. Yet in the shadow of all that I remember, three images stand out. My brother and I saw a huge bulldozer mowing down our favorite neighborhood market. I also remember the stricken expression on an old woman's face when she came to get her grandson from the street outside our house. She had heard rumors that young boys were being taken to forced sterilization camps. The third image came via my father. He had seen a young man jumping off a truck near the South Extension crossing with the police running to catch him. The truck was full of men being taken to a sterilization camp. The journey into the past began when I met Fazluddin in Trilokpuri, where he runs a ration shop with his sons. Trilokpuri is a resettlement colony in East Delhi, barely 15 minutes from my house. These colonies were set up to house people forcibly displaced from the inner city during the emergency. Fazluddin lost his shop in the 1976 demolition at Turkman Gate and then restarted at Trilokpuri. A few days later, I met him in his house at Turkman Gate with his wife, Kamrunissa. छिहत्तर के अंदर ये हुआ था कि 13 अप्रैल को बिल्डोजर आके लग गए। जगमोहन जी ने बिल्डोजर लगा दी बाहर, 14 बिल्डोजर, और खड़े हो गए वहाँ पर। जिस वक्त उन्होंने तोड़ फोड़ की तो वहाँ पर एक मजमा बैठा औरतों का कि भाई इसको रोका जाए, हमें नोटिस दो इस बात का कि हम अपना सामान निकाल सकें। उन्होंने कोई सामान निकालने की कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं। पथराव हुआ पीछे से, पुलिस ने गोली अंधाधुंध चलाई 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल की बात, गोली चलाई। गोली चलाने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की
और कर्फ्यू लगा दिया। फिर उन्होंने देखा नहीं कुछ भी क्या हो रहा, कुछ दब रहा है, फिक रहा है, टूट रहा है, कुछ नहीं। सब लोगों के सामान दबे और वो लोग जो है जैसे भी इनसे भाग सके भाग लिए। बाकी उनका नुकसान हुआ। फिर जेल भर दी, गाड़ियाँ भर भर के ले गए। किसी की हत्या मारी, बंदूक सर में मारी, किसी के कमर में मारी, सबको खदेड़ के ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। बस फिर उन्होंने 14 बिल्डोजर लगा के सब तो नाश कर दिया, सारे मकान का बिल्कुल मैदान बना दिया। चारों तरफ फाटक को कर दिया खाली और मिट्टी के ढेर बने हुए थे चारों तरफ। नल पानी काट दिया, बिजली की लाइन काट दी। अब क्या करते, कैसे रहते अंधेरे में? गलियों में मलबे भरे हुए थे, बुरी तरह से निकलने की जगह नहीं थी। बहुत बुरा असर हो गया था उस टाइम, कयामत का मंजर था। बस रोते रहते थे सब। मर्द तो बेचारे छुप रहा है कि गिरफ्तारी हो रही है, खींच खींच के लिए आ रहे थे घर में से। और औरतें अपने बच्चों को लिए बैठी हुई हैं, छानी छानी बच्चियों को लेके बैठी हुई हैं। और थोड़ी देर बाद देखा तो हम मर्दों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले जा रहा है, बुड्ढों को ले जा रहा है, सोते हुओं को। यूँ छोरिया बेचारा एक बुड्ढा अंदर घोसी, और उसको मैंने देखा ऐसे खींचते हुए ले गए बकरी की तरह से। इधर से सीताराम बाजार से भी ले गए, बहुत ले गए थे पकड़ पकड़, सबको बंद कर दिया। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, बहुत बुरा असर करा था। उस टाइम तो ये हो रहा था कि बस ये पुरानी दिल्ली को सफ़ा करना है, नई दिल्ली बनेगी। संजय का प्लान था ये नई दिल्ली बनेगी, यहाँ से जामा मस्जिद तक सफ़ा करेंगे। I met Gurmukh Singh first as a customer 7 years ago. He belongs to the Patparganj taxi stand in East Delhi. Gurmukh Singh came to Delhi in 1965. During the emergency, he was with the taxi stand opposite the Indian Express building. जी लोग डरे हुए बहुत थे, कोई बोल नहीं था सकता। ये गवर्नमेंट की तरफ से जातियाँ होती थी, पुलिस देखती थी, जिसको मर्जी पकड़ के नसबंदी कर दी, जिसको मर्जी उसको अरेस्ट कर दिया दुकान वाले को। ऐसे लोग डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। एमरजेंसी में ये हमारी तरफ तो जी ये मकान वगैरह बने थे, वो लोगों ने उस टाइम तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। लोग डरे हुए बहुत थे, किसी की बात ही नहीं थे सुनते। एमरजेंसी में कोई सुनाई नहीं थी किसी की, लोग इससे बहुत नाराज़ हो गए थे। एक फिर ये जो अपना तुर्कमान गेट की तरफ वो सब दुकानें वगैरह तोड़ी, और भी जो ये कॉलोनियाँ बन रही थी वो भी तोड़ रहे थे। जगमोहन था उस टाइम जी डीडीए में। अच्छा जी, फिर उस टाइम एमरजेंसी में कोई देश में ऐसा संकट नहीं था भाई एमरजेंसी लगानी पड़े। ये कानून इंदिरा गांधी ने कहा था, पर कानून की तो तजियाँ उड़ी है, कानून को तो गलत मिसबिहेव हुआ है। कानून है लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती हुई, किसी ने मकान बनाया वो तोड़ दिया, किसी ने दुकान बनाई वो तोड़ दी है जी, किसी को रेडी वाले को हटा दिया। अच्छा, जैसे बच्चों को ही पकड़ के उनकी नसबंदी करती। यहाँ तो कानून था जो इतना मिसबिहेव हुआ, कानून जो लागू करने वाले थे वही कानून से खिलाफ हो गया। The new complex around Priya Cinema in Vasant Vihar. We lived close by for a short while in 1976 when the place was still quite desolate. Today the area is completely transformed. It takes me more than an hour to come here from my East Delhi residence. I see the rush of color, the sound of the music and the movement of the people. And yet there is a cheerful emptiness here. Standing here, it seems difficult to believe that 16 years ago in 1984, this city witnessed
unimaginable violence. The news photograph. In its attempt to record the violence of 84, flashes of that time emerge. I remember the sea of smoke visible from the terrace of our Alaknanda apartment on the 1st of November. Kalkaji was burning. A taxi driver from the local stand was trying to park his taxi in an empty garage to save it from the violent crowds. Concerned about their own children, our neighbors said no and pushed the taxi back onto the main road. No one could do anything. The driver covered himself with a shawl and left to save his own life. Miraculously, the taxi survived the 3 days of violence that followed. Revisiting 1984 is never easy. I went to Tilak Vihar, located in the west of Delhi, to look for Nanki, who my sister remembered from her work at Sultanpuri 16 years ago. The neighborhood here houses many of the widows who survived 84. Almost every house has a gruesome story to tell. Suddenly, those 3 days in November destroyed everything. इंदिरा गांधी मरी तो हमने तो सोचा भी नहीं था जो हमारे सरदारों के साथ ऐसे बीतेगी। फिर हम देखते रहे थे भाई इंदिरा को मार दिया है, देखते रहे थे धुआं, कोई नांगलोई में मंगोलपुरी में ऐसे धुआं उठ रहा है, तो हम सोच रहे कोई हमारी तरफ थोड़ी आएगा। हम देख रहे हैं इधर धुआं उठ रहा है, इधर धुआं उठ रहा है, देखते रहे। उसके बाद में 4 बजे का टाइम हुआ। 4 बजे का टाइम हुआ, मेरे हस्बैंड मेरे को बोले भाई नान की चाय बना ले। फिर मैंने सोचा मैं दूध की डेयरी खुल जाने तो दूध मंगवाते हैं, फिर चाय बना लेंगे। छोटी लड़की मेरे पेट में थी, पूरे दिन थे मेरे को, तो मेरे को वैसे मेरे को परेशानी सी थोड़ी सी चल रही थी। वास्तव में आके देखो तो पूरा 1000-1500 आदमी का हमला। देखा तो कोई पहचानने भी नहीं आ रहा कौन आदमी है, क्या है क्या नहीं है। इतनी बस उनके हाथों में इतना सामान है तैयार जो मैं देख नहीं सकती। मैं बच्चों को लेकर भाग गई, कि मेरे पीछे गोली की फरार कर दी। वो बड़ी मुश्किल से हम बचे, जाके उसके इतनी दूर फासला था, पार्क पार करके पड़ोस का वो इतवारी का मकान था, उसके घर में हम पूरी रात छुपे रहे। तो उसके बाद में मस्जिद में चली गई। मस्जिद में सब हमारे लोग, ये लेडीज सारी, सब ने जो सरदार थे उनके अपने हाथ से डर के मारे कैंची लगा के सबके उन्होंने बाल काट दिए, सबको मोने कर दिए। बेचारे सरदार जो नहीं भी बीड़ी पीते डर के मारे, उन्होंने भी बीड़ी मुंह पे लगा ली पीने के लिए। डर उनको पैदा हो गया। सोचा चल बीड़ी पी लेते हैं, हमें कोई नहीं मारेगा। मेरे आंखों देखते देखते कईयों को मेरे सामने मार चुके वो। उसके बाद में रात तो घर वाले को मेरे को मार दिया था। उस सवेरे उठ कर 3 बजे हम दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं, हम जहाँ पे परली तरफ रहते थे वहाँ चले। थोड़ी देर सवेरे 3-4 बजे का टाइम, वहाँ थोड़ी देर बैठे। उसके बाद में वो फिर वहाँ पे हमला आ गया। 1 तारीख से लगा के 3 तारीख तक हमला होता रहा। Nanki's daughter Sangeeta was only 10 when the violence hit Sultanpuri. इस टाइम में 10-11 साल की होंगी ऐसे। तो वहाँ से भी कैंपों में लेके आए थे लड़ाई के मतलब बाद में। तो वहाँ मम्मी बहुत रो रही थी, पापा का पता चला था, किसी का पता नहीं चल रहा था उधर। तो वहाँ से रोना चिकना पड़ा हुआ था, हर कोई रो रहा था, मम्मी भी रो रही थी, सब रो रहे थे। जैसे बाद में मम्मी की गाड़ी में आए थे ना आर्मी वाले,
पुलिस वाले आए थे लेने के लिए, वे अपने अपने आदमियों को ढूंढ रहे उधर जाके। तो मम्मी भी गई थी, सब भी गए थे, सारी जितनी भी औरतें थी, किसी को पता ही नहीं चला। जो क्यों मार के नाक दिया था उन्होंने पता नहीं किधर किधर। तो फिर ऐसे कैंप में रह रहे थे। तो सुनीता होने वाली थी, रात के 10-11 बजे मम्मी को डॉक्टरी ले गए थे। तो उधर ही मम्मी को तो अलग डॉक्टरी में ले गए, हमें उधर अनाथ आश्रम पता नहीं क्या था, उधर छोड़ गए थे हमें। वहाँ रात दिन हम रोते थे, मैंने कहा हमारी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो फिर 7-8 दिन बाद लेके आए थे मम्मी को हमारे पास। फिर ऐसे में मेरी बहन जैसे जौन से मर गई थी, वो बीमार हो गई, मैं बीमार हो गई, मेरे सारे मतलब बहन भाई बीमार हो गए थे। तो इतना पैसा नहीं था जो हम इलाज करवा लें मम्मी के पास। पता नहीं इलाज नहीं हुआ तो मर गई मेरी बहन। I had known Gurmukh Singh for many years, but had never met his family. He lives in a taxi driver's neighborhood in East Delhi. Gurmukh Singh sent his family back to the village after 84. His daughter Sukhvinder has now returned, years later, to stay with her father. देखो 1984 में जब दंगे शुरू हुए हैं, हम टैक्सी चलाते हैं। पहले तो हम टैक्सी स्टैंड पे थे। जब हमारे को पता चला भी ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी जी को गोली मारती, किसी ने भी मारी या उनके अंगरक्षक ने मारी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दंगे भड़क गए। हम अपने घर चले गए। जब शाम को पता चला जी कहीं फलानी जगह किसी का मकान तोड़ रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, ऐसे चारों तरफ से यही आवाज़ आई। ऐसे ही हुआ चारों तरफ। उसके बाद हमारे जितने भी आदमी इधर उधर थे सब वहाँ इकट्ठे हो गए। हम विश्वकर्मा पार्क में रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने अपनी सभी आदमियों ने इकट्ठे बैठ के ड्यूटी लगा ली भी जागते रहो हर वक्त। अच्छा जी, उस टाइम पुलिस आई हमारे पास। उन्होंने बोला आप घरों में चले जाओ। हमने कहा भाई हमारे को आप लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं, हम घर जाके आप बाद में हमारे को ही मार देंगे। हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग बनाई, सभी आदमियों ने खाकी वर्दी डाल दी भी लोग बाहर से ऐसे लगे भी यहाँ फोर्स लगी हुई है, इसलिए हमारा बचाव रहा। नहीं तो लोग आते रहे बाहर से रौला पा के चले गए। जब देखा 40-50 आदमी बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं आया। ऐसा हुआ, ऐसा हमारा बचाव रहा। नहीं तो दिल्ली में चारों तरफ दंगे हुए हैं। किसी को गल में टायर पा के जाल दिया, किसी का मकान जला दिया, किसी को सिर पे छड़ मार के मार दिया। उसके बाद बच्चे डर गए सब। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला भी बच्चों को यहाँ भेज दो। उसके बाद हमने वहाँ पंजाब में मकान बना लिया। बच्चे वहाँ फिर पढ़ने लग गए, फिर वहीं रहने लग गए बच्चे। कुछ उस टाइम हालात ही ऐसे हुए हुए थे जी। उन्नीस 1984 में मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे फिर भी याद है उस टाइम मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि हमें बचाओ बचाओ। हमें भी बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी हमारे मम्मी पापा सभी कहते हैं कि भगवान का नाम लो। इस समय सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बहुत डरावना माहौल था उस समय। आगे लगी हुई थी इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना माहौल था उस समय। तो ये लग रहा था कि हे भगवान हमें एक बार दिल्ली से छुड़ा दो, उसके बाद हम दिल्ली नहीं आएंगे। सरदारों को कहते हैं जूड़ी वाला, जूड़ी वालों को यहाँ पे नहीं रहने देंगे।
ये जुड़ी वाले अच्छे नहीं हैं। ऐसे जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमारी चोटियाँ की होती थी ना, तो वहाँ पे जो बच्चे थे, जैसे अब मैं क्या कहूँ, वो हिंदू थे या मुसलमान थे, वो हमारी चोटियों को मतलब खींचते थे कि ये सरदार है, इन्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मतलब हमारा मजाक उड़ाते थे वो बहुत ज़्यादा। जैसे ये 1900 इंदिरा गांधी कांड तो जिसने किया वो किया, लेकिन वो कांड सबको भुगतना पड़ा, हर एक सरदार को भुगतना पड़ा, उनके बच्चों को भुगतना पड़ा। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इससे। फिर ऐसे ही वहाँ से दादा दादी जी कहने लगे कि अब बच्चों को गांव भेज दो, क्योंकि वहाँ पे तो इतना शोर शराबा, जैसे ये आगे वगैरह लगी थी ना, उस टाइम सभी डर गए थे। फिर पापा को बोला कि अपने बच्चों को गांव छोड़ जाओ, और उसके बाद हम गांव चले गए। बहुत ज़्यादा हमारे में फ़र्क आ गया। अब गांव में जाकर मतलब कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। जैसे फिर पापा को यहाँ पे आकर फिर से दोबारा ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी, और हमें भी बहुत परेशानी हुई। वहाँ पे जाकर स्कूल वगैरह में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मतलब बहुत सारा माहौल आ गया, जिसकी वजह से हमारा परिवार एकदम से टूट गया, और इतना टूट गया कि आज तक हम संभल नहीं पाए। हमारा परिवार दोनों, मतलब एक कमाने वाला है और 2 जगह हमारा परिवार बांटा हुआ है, और इससे ज़्यादा परेशानी और क्या हो सकती है। Displacement and resettlement. Both can summarize a brief history of Delhi. During the emergency, I remember seeing posters asking people to keep the city clean. These were the slogans that made the inner city one of the main targets in the drive for a perfect capital. Everywhere, bulldozers were used to destroy slums, markets, and shops. Popular memory recalls rubble everywhere and rumors of violent clashes and deaths. Despite censorship, the stories circulated through word of mouth and underground pamphlets, as parts of the city came into direct conflict with the vision of the city planner. The most well-known of these was the story of Turkman Gate, where the alleys of the old city clashed with the bulldozers. शाहजहान आबादी है ये, और इसके अंदर 500 साल से हम रह रहे हैं। तो क्या हमारे साथ ऐसा होगा कि इसको सबको उजाड़ के इसको सब शाहजहान आबादी, जो एक शहंशाह ने, हिंदुस्तान का एक बादशाह हो, शाहजहां जिसका नाम, और जिसने ये दिल्ली को आबाद किया, कि ये राजधानी बनाई, तुर्कमान गेट से सफीलें खींची, चारों तरफ इसका हाथा खींचा और इसको बनाई, क्या इसको उजाड़ दिया जाएगा? तो जगमोहन साहब ने जो है मास्टर प्लान में कहा ये तो यहाँ से हट जाना ही पड़ेगा आपको। तो लोगों के साथ फिर जो है बहुत काफ़ी दिक्कतें आती थी कि उनको डर लगता था रात को निकलने के बाद, अगर उसके पास सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है
और रात को नाइट शो देख के आ रहा और इस दिमाग से उसने टिकट फेंक दिया या उसके हाथ से निकल गया तो पुलिस ने रोक लिया, कहाँ से आया। अब उसको छोड़ नहीं रही, जब तो वो या तो वो टिकट दिखाया कि मैं हॉल से आ रही हूँ, मैंने पिक्चर देखी है, इतने का टिकट लिया है, जब वो अपने घर जाता था। और अगर उसके पास टिकट भी नहीं तो सीधा अंदर है वो, तो उसको कोई जो है उसकी खबर नहीं जाती वो किधर गया। तो बड़ा सख्त मामला था, बहुत ज़्यादा सख्ती इमरजेंसी के अंदर, दबाव। फिर नसबंदी होती थी उस टाइम 75 के अंदर, नसबंदी का जोर। अब मेरे साथ हुआ, मेरे आखिरी बच्चा पैदा हुआ। अब नाम लिखवाने कार्यालय गए, बाजार सीताराम गली एक गौशाला है, उसके अंदर नाम लिखते हैं, पैदाइशी लिखवा। वो कहती कौन सा बच्चा हुआ, ये 75 की बात। तो मैंने कहा भाई ये बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई है। कह लेंगे तुम्हारा काम लग गया। और उसने किवाड़ बंद कर दिया मुझे। मैंने भाई आज तेरी खैर नहीं है, जो कुछ हो, क्यों वो बोलने की ताकत ही नहीं है कि उससे क्या जवाब दे, आप कैसे जाए यहाँ से लेकर। तो उसके पास जो वो टीका लगाने का होता है ना, टीका लगाते हैं, कुछ कैंची पड़ी, मैं तो ये जान से मार दूंगा, या तो इस किवाड़ खोल दो, क्योंकि उस वक्त अकेला मैं भी वो डॉक्टर था, मैं तुझे नहीं छोड़ा, तेरा पेट फाड़ दूंगा, क्या मुझे फांसी हो जाए। तो उससे संघर्ष करके, लड़ाई करके, जैसे भी वहाँ से निकल के भागे, किसी तरह नसबंदी नहीं। Fazluddin, Nanki, and Gurmukh Singh have all reflected on their experience of the violence that changed their lives. I had a feeling there was more to these stories. It is now more than 2 decades since the period of the emergency. The violence of 1984 is 16 years old. And yet in this city, the memories exist in different ways for different people. I wondered how these events actually inhabit daily life in the city. I needed to know more. These are the gullies of the old city that Fazluddin has walked since his childhood. He had grown up to become a gifted kite flyer, and his stories of childhood, of play and change had the quality of a personal memoir. शरारती बच्चे हम बचपने में छतों पे थे और छतों पे लड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे हैं, अपने छतों पे बैठे हैं, सारा दिन धूप के अंदर, टीन जल रही है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, मगर पतंग उड़ा रहे। अब हमारे पास एक चिट्ठी आई जी, आप लखनऊ आ जाओ और हमसे शौक करो। तो ये आपस में कहते हैं एक शौक करते हैं जी पतंग का। अब वहाँ गए और जाने के बाद उनके घर से आवाज़ दी कि उनका नाम था अब्दुर्रहमान साहब। हमने कहा अब्दुर्रहमान साहब हैं, तो उनकी घरवाली रोटी पका रही थी। वो बातचीत होती रही, होने के बाद वो बोली तुम छत पे आ जाओ। हमें बड़ी शर्म महसूस हुई कि एक लेडीज़ क्या कह रही है ये। मैंने कहा जी आप क्या कह रही हैं कि तुम पहले मेरे से ही लड़ा लो फिर। मैंने कहा भाई तुम ये छत यहाँ पे खड़े होगे, हम कहाँ खड़े हो, जैसे ये छतें हैं। वो कह लेंगे आप वहाँ चले जाइए, मैं कह दूँगी इनसे, और आप वहाँ अपना सामान ले जाओ। मैंने कहा भाई हम 5 हैं, कह लेंगे नहीं तो एक ही तो लड़ाएगा, मेरे से एक ही लड़के लड़ाते हैं। जब 5 पेज उन्होंने काट दिए तो 5 पेज काटने बड़ी अहमियत रखाते हैं। अब एक आदमी हो, पुरुष हो, मर्द हो, उसके पेज कट जाए और कटने के बाद उसको बड़ी शर्म महसूस होती है। एक लेडीज़ है, पेज लगा रही है और हम सीनियर हैं और अच्छी कलमों में लगा रहे हैं, और ये हो क्या रहा।
कि एक लेडीज पेज काट रही है और कितनी शर्म की बात है। और उसमें हमें बड़ी शर्म आई, जहाँ हम जाए होटल में जा रहे हैं तो यही चर्चा हो रहा है, यार क्या ये भैया जहाँ है दिल्ली वाले ये जनानी से पेज कटते हैं। अब हम शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा है, किसी तरह यहाँ से लिख ले, तो ऐसे हालात बनते हैं। ये शहरी परंपरा है, पुरानी एक परंपरा है दिल्ली की पतंगबाजी, कबूतरबाजी। उसको बादाम, किशमिश और ये चने और किशमिश मिला के खिलाना पड़ता था। तो बचपन में बहुत सी चीज़ें, बुलबुलबाजी, भेड़े पाल रहे हैं, भेड़े पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये शौक उस वक्त थे। तो एक अजीब परंपरा थी। आज तो जो है क्या है कि क्रिकेट देखना है, क्या कितने का टिकट मिले कि क्रिकेट कहीं भी हो तो क्रिकेट देखें, वो शौक जो है वो पुराने ख़त्म हो गए। अब सिर्फ क्रिकेट है और उस पर ज़्यादा जोर है। क्रिकेट का जब मैच होता है तो तुम्हें क्या बताऊं, एक एक दुकान पे अगर कहीं यहाँ टीवी ला के रख दिया तो 300-300, 200-200 आदमी इस क्रिकेट देखने के लिए होते हैं। और फिर इसमें शर्तें लगती हैं कि भाई ये कितने रन मारेगी टीम, ये इतने रन पे जीतेगी, ये इतने बना के आउट हो जाएगा। और पाकिस्तान के मैच में तो इस कदर ज़्यादा होते हैं कि मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को चाहता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और हम देखें। और उसके अंदर जितनी टिकट बिकती है और जितनी दुकानों पे और घरों में भरे होते हैं आदमी, क्या वो रात के 2 बजे ख़त्म हो या सारा दिन उनको बैठना है सुबह से जितने शाम तक, तो उस मैच को बहुत शौक से देखते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर देखिए मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ गेंद के पीछे लगा रहे हैं। बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण मैच है ये। धीरे से पुश करके 1 रन लेना चाहते हैं, लेकिन तेंदुलकर गेंद पर तेजी के साथ दीवाने हो जाते हैं सब, शर्तें लगाते हैं, खूब जुआ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, इसका जिस किसी का भी हो, सब पे शर्तें लगती हैं। ये जीतेगी तो 1000 है, ये जीते तो 2000, बड़े जुएबाजी होती है यहाँ पे। और जब पाकिस्तान का होता है जब और भी तूफान मचता है। मैच वाले तो बहुत, मैच तो खैर मैं भी देखती हूँ, मैच तो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत शौक है। टमटमें होती थी हमारे टाइम में 2 घोड़ों की, तो 2 घोड़ों की टमटम निकल रही है, उसके पीछे बच्चे भाग रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके अंदर एक लाला बैठा हुआ है जो सेठ है उसमें जा रहा, तो वो देखा करते थे। तो उस वक्त की बातें आज याद आती हैं। तो कभी तो ऐसा लगता है वो अच्छा था, कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं था, अब बहुत अच्छा है। चल कर जहाँ कोई न हो, रहिए अब ऐसी जगह, चल कर जहाँ कोई न हो। हम सुखन को ही न हो और हम ज़बान कोई न हो। एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसा यार न हो और पास कोई न हो। It is easy to be nostalgic about the pleasures of the old city, but the fact remains that this is a workplace for thousands of people. The oldest markets of the city, dating back to the Mughal Empire, are housed here, still drawing thousands of buyers every day. I see no nostalgia in Fazluddin's stories of Shah Jahanabad,
but perhaps a way of asserting the old city's place in the overall life of Delhi. Like many living in this area, Fazluddin saw the Turkman Gate demolition as an attack on the walled city. We are back at Tilak Nagar. Nanki is extremely regular about her early morning walk with her dog Jimmy before she leaves for work. Nanki works at the NCC office in R.K. Puram. क्या बात है ओए क्या बात है हैं क्या हुआ तेरी पिक्चर बनी इधर इधर घूम इधर घूम इधर घूम इधर घूम जा इधर इधर देख इधर इधर देख इधर कमल 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 बस ये छोटी सी हमारी सुनीता है ना उसकी फोटो है। ये पता नहीं घर में कब फोटोग्राफर आते थे उनसे बनवा लेती थी फोटो। ये तो हमारी अंग्रेजी नहीं संतोष है, संतोष ने बनाई है अपने भाई साहब के पैंट कमीज पहनकर। इन्होंने ये नया इनको ये सूट चले थे ना, मेरे से कहते मम्मी हमें इस रंग का इस कलर का सूट सिलवाओ। मैं इनके लिए लेकर आई, ये सूट पहन के फिर ये फोटो बनवा के आई है। ये राजेंद्र है, राजेंद्र के दोनों दोस्त थे। यहाँ पे पहले झुग्गी डली हुई थी ना, यहाँ पे रहते थे, उनके साथ में राजेंद्र ने फोटो बना रखी है। ये अब हमारी आई है बड़ी बिटिया संगीता, संगीता की शादी की फोटो है। सही फोटो है ना संगीता की? यार ये पता नहीं कहाँ से नान की कौन से जमाने की तस्वीर है पहले की, जब इनके पिताजी की डेथ हुई थी ना तब ये फोटो मैंने बनवाई थी। ये संगीता की है, संगीता की मामा ससुरे की लड़की है, उसकी फोटो है। ये इंदिरा कांड से पहले की फोटो है, काफ़ी दिन की, जब तो इनके पिताजी जिंदे थे। यही फोटो मिली थी 84 दंगों के बाद में, और नहीं फोटो मिली। नींबू कैसे दिए? 40 रुपए किलो। इतना रेट तो नहीं है, फिर आप कैसे रेट लगा रहे हो इतना महंगा? हरी मिर्च 250 ग्राम। 5 किलो दे दो। अदरक कैसे दिया? 7 रुपए। 8 नहीं 7। रेट का मुझे मालूम है मंडी में क्या रेट चलता है। और सही कीमत नहीं मिलेगी तो टमाटर वाला बंद कर देंगे। फिल्म में तो पहले देखा करती थी, अब तो जब से ड्यूटी लगी अपनी बहुत कम जाती है। नहीं, जब दिल करता कोई अच्छी पिक्चर लगी होती है ना हॉल पे, तब तो छुट्टी भी कर लेती हूँ मैं। अच्छा हाँ, आपको सबसे अच्छी कौन लगती है? नहीं वैसे तो पिक्चर सही लगती है देखने में। जैसे यहाँ पे भी केबल में बहुत मैं कम बैठती हूँ देखने के लिए। जब देखना है ना हॉल में जाना है पिक्चर देखने के लिए, वहाँ जाती हूँ पिक्चर देखने के लिए। हाँ 3-4 लेडीज ऐसी हैं, बस भाई बोल देंगे भाई हम तो जा रहे हैं अपने काम से, 12 से 3 पिक्चर देखे 3 बजे वापस ऑफिस में आ जाती हैं। Number 1 songs from the number 1 films in the number 1 album of the year. रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं, चोरी से आना चुपके। For Nanki, the city beyond her neighborhood is what she sees in her daily bus journey from Tilak Nagar to R.K. Puram. Nanki told me that she has hardly travelled to other parts of Delhi.
अगर टाइम से निकलती तो बस मिल जाती है चार्टेड, अगर नहीं मिलती बस तो फिर उसमें मैंने 588 बस पकड़नी होती है। फिर मैं सोचती मैं कि चल किसी तरीके से पहुँचूँ, दो बस बदल के अब चली जाती हूँ मैं यहाँ से। फिर अपने नानकपुरा तक बस, नानकपुरा से चेंज करती हूँ बस आर के पुरम, मोहन सिंह मार्केट उतरती हूँ, वहाँ से मोहन सिंह मार्केट से अपना पैदल 10-5 मिनट का रास्ता है, ऑफिस चली जाती हूँ। आपका नहीं, चार्टेड ने तो बढ़ा दिया है किराया, चार्टेड ने 15 रुपए कर दिए। हमारा नहीं बढ़ा रहा है, आपका तो वही रेट है ना, पहले वाले 8 रुपए। बड़ी बदतमीजी बहुत ही कर रहे हैं वैसे चार्टेड वाले। सीएनजी की अभी कोई डिमांड आई नहीं है और पहले उन्होंने किराया बढ़ा दिया है। सीएनजी तो आई कहाँ रही है अभी, बहुत कम मिल रही है, 1 किलो 300 ग्राम, वो अभी 4 घंटे लेन में लेकर आओ, 2 घंटे लेन में लेकर आओ, तब तो कहीं जाके नंबर आएगा गाड़ी का। सीएनजी की डिमांड कर दिया, गाड़ी कोई है ही वो चला नहीं रहे ढंग से। वैसे तो ये ठीक है, हम इसको बुरा नहीं समझते सीएनजी का, पर इसके लिए कुछ हल लभना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी सीएनजी के पंप ही नहीं है, बसां वाले कहाँ से सीएनजी लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए देखो स्कूलों में बसें नहीं जाएंगी, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, पहले गवर्नमेंट को इसका इंतजाम करना चाहिए था। गवर्नमेंट कर तो सकी नहीं कुछ भी, अब अभी कह दिया अभी बंद कर देंगे। Gurmukh Singh and Nanki's reference to the crisis of CNG supply and the new flyovers all across the city shows the dramatic transformation of Delhi since the emergency. Unending construction, steel and concrete everywhere, and the new drive for spectacle and cleanliness. Shoppers Stop housed at the Ansals Plaza complex in South Delhi, the new shopping mall, just a few years old. New Delhi's journey from the cement flyover to the glass and steel of the shopping mall is the story of the great cleansing of this city and its memories. The new city is most visible at night, seductive and exciting. The night is now seen, not just experienced. We walk through it as images fade and reappear constantly. There is no doubt this new night is attractive with its mix of adventure and fantasy, and I am drawn to it. Yet reconciliation with this new time can never be easy, as voices from the other city constantly flash before us. मुझे बहुत अरमान था अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी, लड़कियों को लड़कों को। अब जब दुकान ही टूट गई, जब कमाने वाले थे दूर चले गए, परेशानी हो गई, तो सारे अरमानों में पानी फिर गया।
बच्चों की पढ़ाई छूट गई, अब घर से बेघर हो गए। यहाँ से फिर हम गए सीलमपुर, सारा घर का सामान लेके सीलमपुर गए, और ये तो बस अपनी दुकान के चक्कर में रहते थे। मैं बच्चों को लिए बैठी रहती थी, अपने काम करा, 10 रुपये 20 रुपये ला दिए, पका लिया, खिला दिया बच्चों को। बहुत बुरा असर था, बस सारे अरमानों में पानी फिर गया। मेरे तो बच्चों की पढ़ाई ही रह गई। बड़ा अरमान था, मैं बड़े वाले लड़के को पढ़ाने का इतना शौक था कि इसे डॉक्टर बनाऊंगी। पढ़ता कैसे हो, या तो उनका पेट भरा दो या अरमान निकाल लो। छोटे छोटे बच्चे थे। किसी को ये नहीं पता थी कि होगा क्या, कुछ नहीं पता। बहुत बुरे हालात, और आजकल के हालात फिर ऐसे ही हो रहे कि तमाम चांदनी चौक में जो हलवाई की दुकान है कि भाई ये भी टूटेगी, ये भी टूटेगी, चांदनी चौक से भी मेट्रो ट्रेन निकलेगी, कि भाई वो रोकने का कोई कारण नहीं है, ऑर्डर कोर्ट से। तो इस तरह के हालात फिर चल रहे। तो जब 1976 के अंदर तो इमरजेंसी लगा कर उन्होंने काम किया, आज कोर्ट का सहारा लेके काम कर रहे हैं। वो इमरजेंसी लगा दी गई कि इमरजेंसी है क्या भला, कि कोई बोल ही नहीं सकता, किसी को कोई सुनाई नहीं। और आज जो है वो इमरजेंसी भी ज़्यादा है कि आज क्या बोल सकता है कि भाई कोर्ट से ऑर्डर है। For the middle class, the emergency brings a taste of what the poor have always known. For the poor, it brings more repression. Long before the emergency, from the Telangana movement onwards, thousands of suspected revolutionaries had been killed and an even larger number imprisoned. History, as a series of political events, overwhelms our ability to remember the past. How do we convey the felt experience of terror and displacement? Events pass by, but memories linger on in ways that are often beyond comprehension. I see the crowd here brush past each other. There is touch and proximity, and also fear and suspicion. The same walk, the same rhythm, and yet the memories always lurking beneath the movement of the city. सैंतालीस की बात जो है, 47 के अंदर जो हुआ तो लोगों ने देखा। अब जैसे उम्र मेरी 14 साल की है, तो उस वक़्त का होश मुझे तो है क्या हुआ। जब मेरे सामने एक बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो मेरी जो नस्ल चल रही है उसको बताऊंगा ऐसा हुआ, तो वो बात जो है नहीं हुआ ख़त्म होती, क्योंकि उसकी आंखों से वो हालात देखे हुए हैं कि जो नहीं देखने वाले थे। जो कि देखने वाले नहीं है, किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, कोई अपने हाथों से कुएं में फेंक रहे हैं कि भाई बेइज्जती के साथ जो है ये जो बेइज्जती हो रही है, इस बेइज्जती से बच जाए। तो कैसे भूल जाएंगे इसको? भूलने का मतलब ही कोई नहीं बनता, कोई कारण कि उसके दिमाग के अंदर जब वो सोच आती है और वो नज़ारा आंखों के सामने होता है, तो आदमी पागल बनता है कि किस तरह हुआ था। भले ही कितना ही हो जाए, कितना ही भाईचारा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये जो घाव होता है ये कभी इंसान नहीं भूलता। क्या है, वो इसकी उम्र 100 साल तक जिएगा तो वो घाव नहीं भूलेगा। ये सर का घाव भूल जाएगा, ठीक हो गया, मगर जो चुप गई बात वो नहीं भूला। क्या 1984 का भूलेंगे सर रात? मुझे आप बताओ, भूलेंगे? जो बच्चे हमारे साथ रहने थे वो गांव में रह रहे हैं। ये बहुत ही मायूसी की में रहते हैं। देखो, हर एक आदमी चाहता है भी हम आगे ऐसे बढ़े, वो हम कर नहीं पाए। कर इसलिए नहीं पाए, हमारे पे एक मुसीबत ऐसी खड़ी होगी भी हमारा परिवार ही बट गया। इस पे हमारे को बहुत दुख हुआ। हमारे बच्चे पंजाब में रहने लग गए, हम यहाँ अकेले रोजी रोटी के लिए हमारे को रहना पड़ा। ये उस टाइम माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था, जो दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए थे उस टाइम। जो हमारे मिलने वाले थे वो भी हमारे को कुछ शक की निगाह से देखने लग गए थे। उनको ऐसे हो गया था भी ये सरदार पता नहीं क्यों यहाँ आए हुए हैं, ये क्यों रह रहे हैं ऐसे।
जब ऐसा माहौल हो जाता फिर डर तो हो ही गया था जी। डर तो हमारे लोगों को, सरदारों को, सभी को था भाई पता नहीं हमने कब मार देना हमारे को, या कब लोगों ने आके मार देना। इसलिए हम सारे लोग उस टाइम मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। अगर आएगा, अगर हमने तो मरना ही मरना है, हम उनको भी मारेंगे। जहाँ मेजॉरिटी हो जाती है किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आने की। वो हमारी यहाँ मेजॉरिटी हुई भी थी, इसलिए जो आए भी वो डर के मारे भाग गए। देखो जो हमारे पे इतने बड़े दंगे हुए हैं, कम से कम दिल्ली में 3000 के करीब आदमी मर गए। ये बात कभी भूलने वाली नहीं है, कोई भूल नहीं सकता इस बात को। जब ये बातें याद आती है, हर एक आदमी का कुछ खून उबाला खा जाता है। भी देखो कैसे हमारे को मारा गया। यहाँ के शहरी होते हुए हमारे पे इतना जुल्म हुआ। किसी का पिताजी मार दिया, किसी का भाई मार दिया, और किसी के मकान को आग लगा दी, किसी के सारा सामान ही जला दिया, पूरे परिवारों के परिवार खत्म कर दिए। हम इसको बहुत ही बुरा, ना भूलने वाली बात है, जो वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। चलो हमारी लाइफ तो बदल गई, अब जिनकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया वो कैसे भूल पाएंगे। अब मैं उस समय बहुत बच्ची थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उस समय बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। इधर भी आग लग रही थी, उधर भी आग लग, और कह रहे थे बचाओ बचाओ। अब इतने छोटे बच्चों को जब मुझे याद है तो जो बड़े हैं वो कैसे भूल सकते हैं? पापा कैसे भूल सकते हैं? मम्मी कैसे भूल सकती है? सरदार जोगिंदर सिंह मेरी दुकान के बराबर में मार्केट। जिस वक्त लोग वहाँ आए उस पर लिखा था सरदार जोगिंदर सिंह, इनका परचून का किराने का काम। मैंने कहा सरदार जी तुम मेरे कमरे में आ जाओ, जो इसमें ऊपर बना हुआ इधर चक्की के ऊपर, और ऐसा है कि आप छुप जाओ, नहीं ये तुम्हें। अब जहाँ उनका एक निशान होता है सरदारों का, उस निशान को उसको मिटाया बोर्ड पे से, उस पर मट्टी वट्टी लगाई, और वहाँ हम खड़े हो गए कि भाई वो आ गए लोग बात कि तो सरदार की दुकान है, हम कह रहे हैं हमारी दुकान है। तो 3 दिन हमने छुपाया, और 3 दिन के बाद हम उसको बुरखा उड़ा के गाड़ी में, बहुत मोटे थे सरदार जी, उनको गाड़ी में बिठाया, बुरखा उड़ाया, तो पटपड़ के थाने में रोक लिया। अरे ये लेडीज़ कौन? अरे बीमार है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यार तुम कहते हो लेडीज़ कौन है? के लिए ये तो बहुत मोटी है, इतनी मोटी लेडीज़ हो ही नहीं सकती। हम उतरे, मैंने बात सुनो, कुछ यार आप कर्मचारी सरकारी कुछ इंसानियत रखो, कुछ भी है। ये सरदार जी हैं, हमारी मार्केट में रहते हैं, देखो क्या हो रहा है। अब एक इंसान के बच्चे रो रहे हैं, फैमिली की वहाँ रहती है, अकेला आदमी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है निकल जाओ। तो इस तरह पर निकाल के भी लाए लोग बाग, जो इंसानियत, जिसको इंसानियत कहते हैं। और एक हैवानियत वो थी कि उसको लिया और पकड़ा, और वो कह रहा बचाओ बचाओ, उसको डाला और उसके ऊपर तख्ते फट्टे डाले और मट्टी का तेल डाला, आग लगा। These are photographs of Sultanpuri where Nanki lived before the 84 riots. She came with me so I could take these photographs.
The new residents have almost no idea of the violence that once rocked this neighborhood. To see the place again is to remember what was lost, the place of both nostalgia and violence. जो हमारे साथ में हालत चानस बीते हुए हैं ना, इस जगह पे मेरा घरवाला बैठता था, इस जगह पे मेरा भतीजा बैठता था, इस जगह पे भाई बैठते थे, सारे बैठते थे। एक एक घर याद आता है, याद आएगा नहीं। मैं कहती उस कॉलोनी को मैं देख नहीं सकती। 16 साल के बाद आपके साथ गई थी ना, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं आके कैसे गई इस कॉलोनी के अंदर। जो दिल की बात दिल में, किसी को क्या बताने से क्या फ़ायदा। कोई अपना दुख तो हल कर नहीं सकता। जो बिता रहे हैं अपने दिल के ऊपर बिता रहे हैं, जो मुसीबत बीत रही है अपने बिता रहे हैं, किस तरीके से बिता रहे हैं, क्या किया जाए। उस घर को तो बस देखते ऐसे जाते हैं, बस जैसे लगता है जैसे खंडर है। याद आती है, यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, यहाँ बैठ के खाना खाते थे। आपने मेरे को उस दिन बिठाया था ना, उसी जगह पे मेरे वही चार पे डाल के बैठते थे। नहीं भूलती मैं। For many, 1984 brought back the experience of the partition. The Purana Killa at the center of the city was once the camp for partition refugees. Thousands once crowded this place. These walls have been witness to stories of loss and of revenge. The memories linger on in thousands of anonymous sites in the city, meaningful only to those who have lived through traumatic events. I see conflict in the streets, the clash of color, of sounds, and of space. The routine rhythm of the city may seem straightforward, but this is a temporary calm. The shadows of the past will always be with us. At the end of this personal diary, all I can say is that looking at the painful memories of others is never easy. Memory has its dangers, its enactments, its fantasies, the unexpected. And yet I still think it is important for us to remember.